Okay. So what I'm going to do, I'll make you write and I'll explain you the things. मैं बताती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी. That is what we are going to do. So if the first convention that you should follow while writing a unit. Can you see my page? Whatever. Can you see whatever I'm writing? Is it very much Yes, clear? miss. Yes, ma'am. Okay. So now the first rule to write a unit is that the unit is written by for any physical quantity. Okay. It can be any physical quantity. You have to represent the unit by a symbol. मतलब अब हर बार आपका ऐसा नहीं है कि लाइक यूर राइटिंग 1 सेंटीमीटर तो आपको पूरा ऐसा 1 सेंटीमीटर ऐसा लिखना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है. यू कैन सिंपली राइट 1 cm. So you have to represent the unit, SI unit of any physical quantity. I'm talking about all the physical quantities. Representing a unit with a numerical things, you don't have to write every time. You don't have to write the whole full form. You can go for the symbol of the unit. Is everyone clear to say? Like if you're writing 1 joule, so 1 J is okay. You don't need to write JOULE every time. पूरा full form लिखने का, पूरा spelling लिखने का जरूरत नहीं है. We'll simply go for symbols. Are you understanding? समझा मैं क्या बोली? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. So write down the first rule for writing the SI. Write down unit of every physical quantity. Unit of every physical quantity. सब लोग लिख रहे हैं ना? Everyone is writing? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, miss. ma'am. Okay. लिखो. Unit of every physical quantity should be represented. Unit of every physical quantity should be represented. Unit of every physical quantity. Unit of every physical quantity should be represented. Should be represented. Should be represented by its symbol. Should be represented by its symbol. लिख लिया सबने? मैम शुड बी रिप्रेजेंटेड के बाद में क्या बोला आपने? By its symbol. By its symbol. आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है न्यूमेरिकल्स के साथ. पूरा यूनिट का पूरा फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है. राइट डाउन सेकंड. अब जरा सेकंड वन समझो. सेकंड वन ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था. यूनिट्स हमेशा हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं. जो उनका नाम होता है हमेशा हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं. डू यू रिमेम्बर दिस? डू यू रिमेम्बर? Yes, miss. अगर जब हम लिखते हैं when we write a symbol, तो अगर नॉर्मल ऐसा कोई यूनिट है तो वी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. बट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, is a name of a scientist. It's not Jules. It is Jules is a name of scientist. So अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. कुछ याद आया? कुछ समझा मैंने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर, मीटर, ये सारे साइंटिस्ट के नाम नहीं है. बट जूल हो गया, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए यूनिट है. तो इनके सिंबल्स कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं. अगर आप सिंबल नहीं लिख रहे हो, पूरा यूनिट लिख रहे हो, तो वहां पर आपको स्मॉल लेटर से ही लिखना है सब कुछ. बट ये सिंबल में इनको थोड़ी सी वैल्यू दी गई है. क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay. Right now, full name of the unit always starts with the full name of the unit. Second point, full name of the unit. Full name of the unit always. Full name of the unit always. Always starts with. Full name of the unit always starts with
starts with small letter. Full name of the unit always starts with same letter. Always starts with Miss same same letter. एक small. Sorry. Small letter. Name of the unit always starts with small letter. Same नहीं आएगा, small आएगा. Always starts with small letter. Even if it is named, even if it is named, even if it is named after a scientist, even if it is named after a scientist. फिर से repeat कर रही हूँ. Full name of the unit, full name of a unit always starts with small letter, even if it is named after a scientist. Example, ये लिखो. 1 centimeter, 1 joule, 1 Newton. ये examples लिखो. 1 centimeter, 1 joule, 1 Newton. तीनों लिख के लो. हो जाए तो बोलना. हो गया मिस. Okay. But symbol for the unit, symbol for the unit Ma'am, can you repeat? yeah, full name of the unit always starts with a small letter, even if it is named after a scientist. Example, 1 centimeter, 1 Newton, 1 joule, etc. But symbol for a unit named after a scientist, but symbol for a unit named after a scientist should be represented by capital letter. Should be represented by capital letter. Should be represented by capital letter. लिख लिया सबने? Yes, Yes, miss. miss. Yes, ma'am. For example, ये 1J लिखो और 1N लिखो. Write this. Done, miss. ओके, ठीक है. नेक्स्ट लिखो. यूनिट्स को कभी भी प्लूरल में नहीं रिप्रेजेंट करते. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे जूल्स लिख दिया. मैंने पर्सनली इसको कट किया. कभी भी ऐसा एस नहीं डालते. लाइक इवन इफ इट इज 5 जूल, you will write it as 5 joule. 5 joules नहीं आएगा. So units are never represented in plural form. Plural form में unit को कभी represent नहीं किया जाता. You are saying 5 second, 10 second, 15 second. You never say 15 seconds. This is a wrong way. Unit को कभी plural form में नहीं लिखा जाता. So this is an SI system.
SI सिस्टम के हिसाब से यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है. समझ में आया व्हाट आई सेड? Even it is 100 centimeter, so you have to write 100 centimeter. You don't have to write 100 centimeters. आपको वो S नहीं लगाना है लास्ट में. समझा? Is it okay what I said? Yes. टीचर Yes, मिस बोलो. लेकिन ग्राम भी एक यूनिट ही है ना, हाँ, तो हम इसको ग्राम्स नहीं बोल सकते, 5 ग्राम्स. नहीं बोलना है. ओके 15 ग्राम, 16 ग्राम. साइंटिफिक पर्सन को ग्राम्स ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए. इट शुड बी ग्राम. 5 वोल्ट. S नहीं लगाना है. समटाइम्स वी डू मिस्टेक, बोलते वक्त हमारा ध्यान नहीं होता और हम बोल देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक सिस्टम आपको यूनिट को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना होता. नहीं होता बोलते वक्त, बट साइंटिफिक स्टडी आप जब करते हो, जब रिसर्च में आप कोई चीज लिखते हो, तो वहां पर आप कभी भी S नहीं लगाते, क्योंकि साइंटिफिकली इट इज सेड दैट यूनिट यू हैव टू राइट इट इन सिंगुलर फॉर्म. समझे? यस मिस. समझे? लाइक while speaking, while teaching you, कभी कभी टीचर्स के मुंह से निकल जाता है राइट डाउन 5 grams, बट दैट इज अ रॉन्ग वे. ग्राम्स जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम के हिसाब से 5 ग्राम इज द करेक्ट वे ऑफ writing the unit and dictating the unit. Write down. Okay. दूसरी बात, here everyone, while writing the symbols, ये चीज हमको ज्यादा ध्यान देनी है. मतलब ये एक्सेप्टेड है थोड़ी देर के लिए. इफ यू राइट जूल्स, दिस इज एक्सेप्टेड, बट जब आप सिंबल लिख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लिखना है. तो ये पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस जब आप यूनिट का सिंबल लिखते हो तब आपको ज्यादा ध्यान देना है. कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? मतलब व्हेन यू आर राइटिंग 5, और आप जैसे कि मैंने पहले बोला कि पूरा सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बट इवन इफ यू आर राइटिंग, सो थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर किया जाएगा कि ठीक है यू हैव रिटन इट लाइक दिस, बट आप ऐसा नहीं लिख सकते 5 सेंटीमीटर्स. दिस इज द रॉन्ग वे. तो ये चीज सिंबल में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि सिंबल को बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है. एक्सेप्टेबल, बट दिस इज नॉट. क्लियर विद द पार्ट? समझा? Yes. yes, ma'am. Now, after second, the next rule is something like this. Like if you are writing 5 kilometer, तो 5 kilometer करके ऐसा डॉट नहीं डालना है. You don't have to put any what I can say full at the end of the recommended letter. मतलब अगर आप 5 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो उसके बाद आपको ऐसे फुल स्टॉप खत्म नहीं करना है उसको. So you don't have to use any type of symbols at the end of the units. दोनों हुए. पहली बात, सिंबल्स को बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, और दूसरी बात, कोई भी डॉट या फुल स्टॉप कोई भी चीज यूनिट के एंड में, सिंबल के एंड में नहीं लिखना है. इज इट यू? समझा? Yes, miss. इज द 2 rules clear together? आपको प्लूरल फॉर्म में सिंबल्स को नहीं रिप्रेजेंट करना है. दिस इज समवेयर एक्सेप्टेबल. हालांकि हम इतना बड़ा लिखने ही नहीं जाते, बट अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको तो प्लूरल में आपको कभी कंसीडर नहीं करना है. नेवर एवर यू हैव टू डू. अगर आपने 5 जूल लिखा तो यू हैव टू सिंपली राइट 5J. उसका प्लूरल फॉर्म में नहीं जाना है. क्लियर हुआ सबको? और आपको कोई भी यूनिट लिखने के बाद उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं डालना है. इज एवरीवन क्लियर विद दैट? सबको समझा? Yes, ma'am. Okay. Write down the 2 rules. Symbols of unit. Symbols of unit should not be written in. Symbols of unit should not be written in. Symbols of unit should not be written in plural form. Symbol of unit should not be written in form
and it should not have any full stops at the end of the letter, and it should not have, कोई छूटा नहीं है ना, या वापस रिपीट करूं? No, miss. सर ठीक है। मिस वापस से रिपीट मिस इधर थोड़ी डिस्टर्बेंस है। सिंबल, ठीक है लिखो, symbol of unit, symbol of units should not be written in plural form. Symbol of unit should not be written in plural form, and it should not have any full stop, and it should not have any full stop at the end, and it should not have any stop at the end of the letter, and it should not have any full stop at the end of the letter. ठीक है? यस मिस। Okay. Next, देखो जरा. Okay. Do you remember what is the unit for speed? Formula for speed is? What was the formula for speed? Distance upon time. टाइम Unit क्या था इसका? What was the मीटर unit? पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड, यही था। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस यस। अब वेलोसिटी का अगर आपको याद हो, मैंने इस तरीके से आपको करना सिखाया था। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका यूनिट होता है सेकेंड। कुछ याद आ रहा है ऐसा? Yes, miss. पर हम यूनिट पे ऐसे ही रुक गए थे क्या? स्टॉप हो गए थे क्या? नहीं हमने मैम। इसको किस फॉर्म में लिखा था? हाउ वी हैव रिटन इट? वी हैव रिटन इज दिस इज मीटर पर Per second square. स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर। दोनों तरीका सही है, करेक्ट है? यस या मैम। तो ऐसा या तो ऐसा। ये इंडाइसिस रूल के हिसाब से ये सेकंड ऊपर गया तो -2 हो गया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब यूनिट को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपका यूनिट या तो इस फॉर्म में लिखना है या तो इस फॉर्म में लिखना है। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? हाँ मिस। हाँ। अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो आपको यूनिट को इस तरीके से नहीं छोड़ना है। आपको यूनिट को वो डिनोमिनेटर वालों को साथ में लाकर उसको सिंप्लीफाई करके को लिखना है। क्लियर हो रहा है सबको? ये सारा ये वाला रूल सबको क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ू? यस Yes. ठीक है। अब सेकेंड लास्ट यूनिट देखो, फिर लास्ट यूनिट फिर लास्ट रूल थोड़ा अच्छे से समझाओगे। सेकेंड लास्ट रूल, ये रूल क्या बोलता है कि समझो अगर आपको कोई एक यूनिट लिखना है, लेट्स से चलो पावर का यूनिट लिखते हैं। आपको याद है पावर का यूनिट क्या था? डू यू रिमेम्बर? एसआई Watt. सिस्टम के फॉर्म में बताओ।
वॉट के अलावा व्हाट इज वन वर्ड? वन वर्ड क्या था हमारा? पावर वॉज, देखो जरा पीछे जाके पेज, पावर वॉज एम्पियर, नो, पावर का यूनिट देखो, पावर का फॉर्मूला देखो बुक में पर पीछे time. जाके, पावर वॉज वर्क डन अपॉन टाइम, यही था ना पावर, Yes, है miss. कि नहीं? एंड वर्क डन वाज मेजर्ड इन, वर्क डन इज मेजर्ड इन, वर्क डन इज Joule. मेजर्ड इन व्हाट? जूल। Joule. यहाँ पे रूल क्या बोलता है वो समझो। रूल ये बोलता है कि अगर समझो आपने सिंबल लिखा जूल के लिए जे और टाइम के लिए एस, आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक दिस। मतलब एक का फुल फॉर्म लिखो और एक का आप शॉर्ट फॉर्म लिखो, ये तरीका गलत है, आपको दोनों का सिंबल लिखना होगा। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes. मतलब एक आप फुल फॉर्म लिखो और एक आप सिर्फ शॉर्ट लिखो, ये तरीका गलत है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, आपको दोनों को सिंबल फॉर्म में या दोनों को फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes, miss. ठीक है, ठीक है, जरा ये दोनों रूल्स लिख के लो अभी, चलो स्टार्ट राइटिंग। Read on next. The unit of a physical quantity, the unit of a physicality the unit of a physical quantity in numerator and denominator, the unit of a physical quantity in numerator and denominator should not be the unit of a physical quantity, the unit of a physical quantity, the unit of a physical quantity should not be written as, ये वाला पार्ट लिख के दो, should not be written as मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं लिखना है हमको। The unit of a physical quantity should not be written as, ये लिखो, मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं है हमको। It should be written as, it should be written as, ये और ये लिख के लो, it should be written as, ये और ये दोनों, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से लिख सकते हैं। It should be written as this and this. ठीक है, सबने लिख लिया? Yes, miss. कोई ऐसा है जो छूट गया हो? रिपीट करूं? While writing a unit, while writing for any physical quantity, for writing a unit, for writing, मिस ये नेक्स्ट पॉइंट है, बोलो बोलो, ये नेक्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट है। For writing a unit of any physical quantity,
we should writing a unit for any physical quantity, we should avoid mixing of symbol and name. Should avoid mixing of symbol and name. मतलब सिंबल और नाम मिक्स करके नहीं लिखना है, या तो पूरी तरीके से सिंबल पे रहो या तो पूरे नेम पे रहो. We should avoid mixing of symbol and name. समझ में आया ये? रूजा बोलो बच्चों. Yes. यस मैम. Yes, ma'am. रूल जरा समझो क्या बोल रहा है वो. अगर समझो कोई 2 यूनिट्स को आपको लिखना है, ठीक है, तो आइदर यू कैन राइट, फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी का यूनिट था तो वो हम कैसे लिखते थे, मीटर पर सेकेंड, या आप उसको ऐसा लिख सकते हो मीटर -1, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो मीटर हाइफन एस इनवर्स. समझ में आ रहा है? दिस आर द 3 वेज ऑफ राइटिंग. अगर मीटर पर मीटर करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ के पर सेकेंड लिख सकते हो, या मीटर हाइफन डाल के ये लिख सकते हो. समझ में आ रहा है? समझा? Yes. So these are the 3 way to write, but this is not that important. ये तो हमको पता है. अब जो समझा रही हूँ जरा वो देखो. जो 10 के पावर्स होते हैं उनको लिखने के लिए थोड़े स्पेशल ऐसे नाम दिए जाते हैं. जैसे कि आपको पता है कि 10⁻³ ग्राम लिखते थे. 10⁻³ ग्राम को 1 किलोग्राम, मतलब 10⁻³ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? स्मॉल Yes. कैसे? समझा? ही 10⁻, अगर समझो there is 10⁻³ second. This is 10⁻³ second. So this is also written as millisecond. That is 1 millisecond. और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 millisecond. कुछ समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10⁻⁻6 सेकेंड. 10⁻⁻6 को लिखा जाता है 1 माइक्रो सेकेंड. क्या बोलते हैं इसको? 1 माइक्रो सेकेंड. और इसको जो सिंबल दिया जाता है वो ऐसा दिया जाता है. दिस इज माइक्रो. म्यू, ये तुमने देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी आप इसी से रिप्रेजेंट करते हो. 10th स्टैंडर्ड में आपने किया है इसको रिप्रेजेंट. कुछ याद आ रहा है? सो दिस इज 1 माइक्रो सेकेंड. ये आपका यहाँ का लैंग्वेज नहीं है. दिस इज नॉट योर सिंपल अल्फाबेटिकल लैंग्वेज. ये कौन सा लैंग्वेज है पता है किसी को? अल्फा, बीटा, गामा, कौन से लेटर्स है ये? म्यू कौन से लेटर्स में से आता है? इट इज अ ग्रीक लेटर. म्यू बोलते हैं इसको. सो इट इज 1 माइक्रो सेकेंड. माइक्रो सेकेंड को सिंबल में 1 म्यू. समझ में आ रहा है? समझा व्हाट आई सेड? बोलो बच्चों. यस मैम. Yes, ma'am. वैसे Yes, ही ma'am. 10⁻⁹ के लिए भी है. 10 is written as 1 नैनो सेकेंड. स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 1 नैनो सेकेंड. सबको सबको क्लियर है? Yes. है या Yes, ना? ma'am. किसी को कोई डाउट है इसमें? 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब आप ये 1 माइक्रो नहीं लिख सकते. लाइक अगर आपने ये समझो ये ऐसा लिखा 10⁻⁻6,
तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ठीक है 10⁻⁻6 मतलब 10⁻³ और 10⁻³ तो होता है, तो यू कैन नॉट राइट इट एज MS, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर 10⁻6 है तो आपको सीधा इसको 1 माइक्रोसेकेंड इसके ही सिंबल में लिखना है। समझा? Yes. सो ये यूनिट, ये रूल लिख के लो, राइट डाउन। The unit which have 10 raised to power, the unit which have 10 raised to power, the unit which have 10 raised to power, ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव या और नेगेटिव, कोई भी पावर हो सकता है। The unit which have 10 raised to power, पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव, the unit which have 10 raised to power, ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, should be written as, should be written as, should be मत लिखो, can be written as, you can write or you cannot, that is on your choice, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं करता आपको लिखने के लिए। can be written as, can be written as, ये लिख के लो, to 3 gram is 1 kilogram, के छोटा लिखना, दिख रहा है एग्जाम्पल, 10⁻³ ग्राम 1 किलोग्राम। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, तीसरा एग्जाम्पल लिखो, और ये चौथा, ये चारों एग्जाम्पल्स लिख के लो। हो गया मिस। सब नहीं मिस, रुको 1 मिनट। ठीक है। मैम वो तो वाला 10⁻² है ना? 10⁻⁹ नैनो, इसके बाद मैं जो सिखाने वाली हूँ बहुत कंसंट्रेट करके समझना, जो भी समझाऊंगी। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया लिख के सबका? Yes, miss. यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलती हूँ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ important for your entrance point of view and your board's point of view. Dimensions and dimensional
एनालिसिस। यहां से आपके चैप्टर का एक बहुत ही नया टर्न शुरू हो रहा है, सो बहुत कंसंट्रेट करना और बहुत अच्छे से समझना। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, बिफोर स्टार्टिंग विद डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, इस टॉपिक से पहले मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया सब कुछ क्लियर है? किसी को कहीं पर कुछ डाउट है? स्पेशली कन्वर्जन्स वाला पार्ट सब No, कुछ miss. क्लियर है? No, miss. कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? हाँ, आगे बढ़ू, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अब जो टर्न मैं लेने वाली हूँ जिस इस चैप्टर में, कहीं ना कहीं अगर आपका कन्वर्शन थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा तो आपको चीजें थोड़ी इजी चली जाएंगी। बट अगर आप वहां कहीं अटके हो तो यहाँ पे भी मैं वो चीजें रिपीट करूंगी, तो आप लोग वो क्लियर करके ले लें। मतलब आई मीन टू से कि यहाँ से चैप्टर एक नए पार्ट से शुरू होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान लगा कर और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके समझना होगा। अगर अभी नहीं समझोगे कभी भी नहीं समझोगे, ये बात क्लियर करके ले लो, ठीक है? सो बी यू हैव टू कीप योर वेरी मीन्स यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, ठीक है? ठीक है, फाइन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि द पेपर ऑन विच आई एम राइटिंग, इट इज डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? आप लोग बोलते हैं ना 3 डायमेंशनल मूवी है, 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है। कि डायमेंशन होता क्या है? What do you mean by 1 dimension? What do you mean by 2 dimension? And what do you mean by 3 dimension? जो पेपर पे मैं लिख रही हूँ वो कौन सा डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है? या डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन? किसी को आइडिया है? आप कितने डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हो? 3. 3 dimension. तो वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? उसका मीनिंग क्या है? जब आप बोलते हो कि आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हो, इसका मतलब क्या है? आपका ये हम लोग डायमेंशन एक का चीज को 3 डायमेंशन से देख सकते हैं। एक चीज को 3 डायमेंशन से देख सकते हो, मतलब It has 3 phases. इट हैव 3 फेसेस। मेरे क्यूब के पास तो 6 फेसेस होता है, तो 6 डायमेंशनल हो गया क्या? क्यूब के पास 6 फेसेस होता है कि नहीं होता है? 6 Yes, फेस होता है ना miss. उसका? पर 3 फेस स्पेसिफिक है, अबव फेस, फ्रंट फेस एंड साइड फेस। यस। सो समझो अब डायमेंशन को मैं क्या बोल, डायमेंशन का मतलब होता है कि जैसे अभी किसी ने बोला कि हम लोग किसी भी चीज को कितने डायरेक्शन से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट, ये वर्ड डायरेक्शन से देखने के से पहले मैं एक वर्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब वो डायरेक्शंस अलग अलग स्पेसिफाइड होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। मैंने आपको पूछा आई एम राइटिंग ऑन अ पेपर, दिस पेपर आई कैन यूटिलाइज इन हाउ मेनी वे? ठीक है, पेपर को कितने वे में यूटिलाइज कर सकते हो? सो व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस पेपर, एक तो मैं आगे आगे की तरफ जा सकती हूँ लिखते हुए, करेक्ट है? और दूसरा मैं कहाँ आ सकती हूँ? नीचे नीचे की तरफ। अगर मुझे इस पेपर पे लिखना तो यही 2 डायरेक्शन है जिसमें मैं इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ, हाँ या ना? बाहर की तरफ हाँ। कुछ यूटिलाइज कर सकती हूँ क्या? ऐसे हवा में लिख सकती हूँ क्या? नहीं. अगर मुझे इस प्लेन पे रहना है, प्लेन इस पेपर पे रहना है, तो मुझे मेरे पास कौन से 2 डायरेक्शन है इसको यूज करने के? एक तो ये डायरेक्शन है ना, और दूसरा मैं नीचे नीचे या ऊपर ऊपर की तरफ। नीचे ऊपर को हम एक ही कंसिडर करेंगे, लेफ्ट राइट को हम एक ही कंसिडर करेंगे। तो एक तो मैं ऐसा इस लाइन पे जा सकती हूँ और दूसरा मैं इस लाइन पे आ सकती हूँ। सो दिस पेपर, इसमें कितने डायरेक्शंस को मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ? हाउ मेनी डायरेक्शंस आई कैन यूटिलाइज? 2. 2. So your paper is a 2-dimensional system. कुछ समझा? कुछ समझा? Yes. हाँ या ना? Yes. आपका जो बोर्ड होता है हाँ, क्लास में, आपका क्लास का जो बोर्ड होता है वो क्या है? 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल? 2 dimensions. Give me the dimensional. example. 2 It is a dimensional. 2 dimensional.
सर एक कॉर्नर से शुरू करके सीधा सीधा जा सकते हैं, फिर नीचे आ सकते हैं, फिर सीधा सीधा जा सकते हैं, दो ही डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ हाँ Okay. Let's say there is a thread like structure. ऐसा एक thread like structure है, मैंने उसको किसी पर्सन को बोला इस पे चलो. You have to walk on this line. इस पे आपको चलना है. ना ना मैं लेफ्ट जा सकती हूँ, ना मैं राइट जा सकती हूँ, ना मैं और कहीं हाइट पे जा सकती हूँ. मुझे पर्टिकुलरली इसी पे चलते रहना है. ये कितना डायमेंशन हो गया? 1 One One dimension. dimensional. Yes, it is a one dimension. Let's move. अब आपका जो वर्ल्ड है उसमें आप लेफ्ट जा सकते हो, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया. आप सामने आ सकते हो, मैंने इसको वाई एक्सिस ले लिया. और आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, मैंने इसको जेड एक्सिस ले लिया. तो जिस सिस्टम में आप रहते हो वो कितने डायमेंशंस का है? सामने, ऊपर, बराबर कितने डायमेंशंस का है? और लेफ्ट राइट, आप लेफ्ट राइट मूव हो सकते हो, आप ऊपर नीचे जा सकते हो. 4 नो, फिर से सोचो, 2. थिंक अबाउट इट अगेन. ये ऊपर जाने का पार्ट है, नीचे से आप ग्राउंड से शुरू किए, नीचे की तरफ गए. एक ये है, आप लेफ्ट में शिफ्ट होते गए. और एक ये, आप बाहर की तरफ आते गए. कितने डायरेक्शन है टोटल? 3. 3. So you live in a 3-dimensional world. जब आप उसका हाइट, ब्रेथ और लेंथ, ये तीनों देख पाते हो, हाइट, ब्रेथ और लेंथ तीनों, then you say it is a 3-dimensional system. इस सिलेंडर के अंदर का सेक्शन देखो, सिलेंडर के अंदर का सेक्शन देखो. इसका हाइट आप बोल सकते हो, इसका लेंथ आप बोल सकते हो कि ये साइड से कितना मोटा है. हाइट, लेंथ, ब्रेथ. हाइट, लेंथ, ब्रेथ, कितना डायमेंशन होगा ये? 3 3 dimension. 3 dimension. इसका सेक्शन समझो अब इसको. ये कितना लंबा है वो हाइट. ये लेफ्ट साइड से कितना चौड़ा है, लेफ्ट या राइट साइड से, दैट इज ब्रेथ. ये सामने और पीछे की तरफ कितना फूगा हुआ है, दैट गिव्स यू द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर. कि वो कितना थिक है. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? कुछ समझ रहा है? Yes, सो Yes. सिलेंडर के अंदर का सेक्शन इज योर 3-dimensional. तीन क्वालिटीज बता रहे हो ना, ये और ये. तो आप 3-dimensional सिस्टम में रहते हो. अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ समथिंग, मैं 3 डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ अब आपके सामने. मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा सा डायमेंशन की तरफ लेकर जा रही हूँ. अभी तक आपने डायमेंशन कुछ देखा नहीं है, अभी सिर्फ डायमेंशन समझ रहे हैं हम, बेसिकली जो हमने देखा है उतने में. दिस इज 1 dimension, 2 dimension or 3 dimension? 1 1 dimension. 1 dimension. This is 2 dimension. 2 dimension. 2. and this 3 dimension. 3 dimension. 3 dimension. लेंथ, ब्रेथ, हाइट है ना. इसको लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है. yes Yes. सो ये कितना हो गया? 3 dimension 3 dimension. मतलब इसको हम 3 तरीके से देखेंगे. एक तो ये कितना बड़ा है, कितना लंबा है, ये साइड से ये कितना लंबा है, और बाहर और अंदर की तरफ ये कितना फैल रहा है. इसमें अंदर का कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ लंबा और लेफ्ट और राइट वाला सेक्शन है. ये वाला हाइट, ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है, ये बाहर और अंदर नहीं जा रहा है. तो ये 2-dimensional में रेस्ट्रिक्ट हो गया है. और इसमें वाला भी सेक्शन खत्म हो गया है, एक ही डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट. तो समझ रहे हो?
कुछ समझ में आ रहा है? Yes, miss. So this is 1 dimension, this is 2 dimension and this is 3 dimension. अब इसका साइज निकालना होगा तो आप सिंपली क्या लोगे, स्केल लोगे और इसका लेंथ देख लोगे। स्केल लेकर आप इसका लेंथ देखोगे कि कितना वैल्यू है। समझो ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने 5 सेंटीमीटर, समझो 5 मीटर है, लेट्स से मैंने इसको 5 मीटर लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि ये कितना साइज का है, तो यहाँ पे भी मैं स्केल लेके काम करूंगी क्या, से काम हो जाएगा क्या? मुझे ये देखना है कि इसका टोटल साइज कितना है। तो इसका टोटल साइज आप कैसे निकालते हो, कुछ याद है? Length Size into of width. the Length into breadth into rectangle height. is 2 meter and this is 3 meter. What is the total size of this rectangle? एरिया बताओ इसका। 6 meters. सिर्फ 6 मीटर लिखोगे? नहीं 6 Meter मीटर square. लिखोगे? 6 मीटर Square. स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है ऐसा? कुछ याद Yes. आ रहा है या नहीं आ रहा है? yes हाँ नहीं है miss. ना? हाँ. सबको समझ में आ रहा है? बाकी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बच्चों मैं बहुत बेसिक लेके जा रही हूँ, ये तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की बात है। कोई भी ऐसा पूछो, ये समझा सबको? 5 मीटर मैंने स्केल लेके मेजर कर दिया, ये क्लियर हुआ सबको? Yes, हाँ या miss. ना? 28 लोग है ना Yes. बैच में, 28 लोगों का वॉइस चाहिए मुझे, ये क्लियर हुआ Yes, सबका? miss. Yes, miss. Yes, miss. टेंशन है, ये क्लियर हुआ कि इसके में सिर्फ एक Yes, ही miss. डायरेक्शन में जा सकती हूँ, लेफ्ट या राइट? हाँ या ना? हाँ. हाँ हाँ Yes, miss. अब मैं जब Yes, इसका ma'am. इसका इसका साइज देख रही हूँ तो इसका साइज देखने के लिए मैं स्केल लेके काम नहीं कर सकती, मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ. हाँ हाँ और ये रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो आपको 6 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है? ठीक है या नहीं? हाँ, miss. किया है कि नहीं हाँ। किया है? अब मैं इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दे रही हूँ। अब इसमें क्या करोगे, इसमें एरिया निकालोगे कि वॉल्यूम निकालोगे इसका साइज निकालने के लिए? Volume. Volume. बोलोगे फॉर्मूला बोलो, वॉल्यूम Length into फॉर्मूला breadth. बोलो, लेट इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही है। 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 5 मीटर, यही होगा? हाँ या ना? Yes. yes yes व्हाट इज द आंसर? 30 2 3 meters 6 30 6 5 meter. 30 meter 30 मीटर। Cube. Cube. यूनिट सोचो, 30 30 मीटर 30 30 मीटर। cube कोई किलोग्राम बोला, अरे किलोग्राम कैसे आएगा बेटा? मीटर 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 तीनों मीटर यूनिट है, तो आपका किलोग्राम कहाँ से आ गया इसके अंदर? तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 मीटर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये क्या बन गया? 30 मीटर meter क्यूब। Cube. क्यूब जब 1 डायमेंशन था तो सिर्फ मीटर, 2 डायमेंशन आया मीटर स्क्वायर, और 3 डायमेंशन आया तो क्या आया गया? क्या आ गया? Meter cube. मीटर क्यूब। मतलब ये जो पावर है इसका, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर पावर 3 है। ये पावर हमको डायमेंशन के बारे में बताता है कि आप कितने डायमेंशन में बात कर रहे हो। कुछ समझ में आया? कुछ समझा? Yes, miss. यस सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करूं? करूं रिपीट? हाँ या ना? No, miss. नहीं miss. सबको क्लियर है? कोई भी ऐसा है जो अटका हो? No. no नो मिस ये बात क्लियर हुआ कि लेंथ आपको सिर्फ लेंथ है तो आपको वो 1 डायमेंशन के बारे में बताता है। जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आप कितने डायमेंशन की बात करते हो? तो आप कितने डायमेंशन 2 की बात करते हो? dimension. 2 डायमेंशन। dimension और जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो आप कितने डायमेंशन की बात करते हो? 3. 3 Three. डायमेंशन। कुछ समझ रहा है? कुछ Yes, समझ miss. रहा है? हाँ. और ये Yes, जो miss. यूनिट का पावर है, ये यूनिट का पावर हमको क्या एक्सप्लेन करता है? ये यूनिट का पावर हमको किसके बारे में बताता है? बोलो। Dimension. डायमेंशन के बारे में।
यहाँ पर पावर कितना है 1 इज 1 डायमेंशनल, यहाँ पर पावर कितना आया 2 तो मतलब ये 2 डायमेंशनल, डायमेंशन यहाँ पर पावर कितना आया 3 3 मतलब क्यूबिकल जो पार्ट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। कुछ समझे? यस मिस हाँ Yes, मिस miss. आज तक मैक्सिमम 3 डायमेंशन ही प्रूफ हो पाए हैं प्रैक्टिकली। 3 से डायमेंशन 3 प्रूफ नहीं हो पाए, बट मैथमेटिकली देयर कैन बी एनी नंबर्स ऑफ डायमेंशन, पर प्रैक्टिकली प्रूफ आज तक सिर्फ 3 ही डायमेंशन हो पाए हैं। ओके सर, आई हैव अ सर्कल एंड आई हैव अ स्फीयर। स्फीयर का मतलब पता है ना क्या होता है? आपका बॉल स्फीयर होता है। हाँ Your ball is a sphere. Your earth is a sphere. It's not perfect sphere, but of course, it is a different shape. But let's take it as sphere. तो circle और बताओ, circle is a 1 dimension, 2 dimensional और 3 dimensional. 1 सोच के डायमेंशन बताओ, 1 फिर से सोचो। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल इज अ 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। फिर से सोचो, 2 फिर से सोचो, 2 डायमेंशनल। देखो एक यहाँ पर ऐसा है और एक ऐसा है, ये लेफ्ट राइट यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते हो। सर्कल है मतलब इसी पे चिपका हुआ रहेगा, कुछ समझे? सो सर्कल इज अ 2 डायमेंशन। इसलिए सर्कल का साइज निकालने के लिए आप लोग एरिया निकालते हो। निकाला है कि नहीं निकाला है सर्कल का साइज? निकाले किससे निकाला है? एरिया निकाल देते हैं ना, हाँ या ना? यस मिस यस मिस लेट्स टॉक अबाउट स्फीयर। जब आप बॉल लेते हो, व्हेन यू टेक अ बॉल, व्हेन यू टेक अ स्फीयर, स्फीयर का अगर आप शेप देखो, स्फीयर के पास हाइट होती है, लेफ्ट राइट का सेक्शन भी होता है, और बाहर की तरफ कितना फुगा है और अंदर की तरफ कितना फुगा है वो भी एक पार्ट होता है। तो स्फीयर कितने डायमेंशन का हो गया? 3 डायमेंशन 3 dimension. स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल। कुछ समझ में आ रहा है डायमेंशंस का मतलब? यस मिस हो रहा है? अब ये बात तुमको फोकस रखनी है कि ये जो पावर्स हैं, ये जो यूनिट के पावर्स होते हैं, ये इनके डायमेंशंस के बारे में बताते हैं। कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस कुछ समझा? मैम तो किसी ने पूछा कि ये डायमेंशन क्या होता है, तो इतना मैंने जितना एक्सप्लेन किया आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक साइंटिफिक स्टेटमेंट देना है। मैंने जो इतने सारे एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आए कि डायमेंशन का रियल मतलब क्या है, बट साइंटिफिक है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, का जो पावर होता है, वो हमको डायमेंशन के बारे में बताता है। कुछ समझे? कुछ समझा व्हाट आई सेड? 1% 2% समझा? समझा मैम फिर से सुनो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं हम। याद है ना फिजिकल? यस फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग यू कैन मेजर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का जो पावर होता है, वो उसके डायमेंशन के बारे में समझाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? हाँ मिस यस मिस Yes, miss. कोई भी ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ कि नहीं मैम डायमेंशन नहीं समझा, तो प्लीज पिक इट अप, अभी कर लो, क्योंकि ये एकदम ABCD लेवल पे चल रहा है। डायमेंशन आपको एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस का टॉपिक है। आपको वो लोग डायमेंशन निकालने के लिए देते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? ओके, सो आई एम assuming कि आप लोगों को डायमेंशन का मतलब समझ गया है। आपको कोई भी एक क्वांटिटी दी जाएगी, उसके यूनिट को देखना है, उसके पावर को देखना है और बताना है कि डायमेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वांटिटी दी सेकेंड,
उसके ऊपर मैंने डाल दिया स्क्वायर, तो ये कितने डायमेंशन है इसके? व्हाट इज द Two डायमेंशन ऑफ साइड? dimension. टू डायमेंशन है। तो इस क्वांटिटी के यूनिट के पावर को डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, किसी भी यूनिट का भी क्वांटिटी का यूनिट का जो पावर है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स द डायमेंशन। आर यू क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Okay, let's move ahead. So we are very much clear with dimension. Let's understand dimensional formula. सबको मेरा पेज दिख रहा है क्लियरली? हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या मतलब है वो समझो। एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं बच्चों? बताया था ना मैंने? 7. 7। तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब एक्चुअली में हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट्स। बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ध्यान से समझो क्या तरीका है। ओके, इट इज 4-8। आवर लेक्चर वाज फ्रॉम 3 to 4, राइट? सो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला स्टॉप कर रही हूँ, मैं नहीं सिखा रही हूँ अभी। आपको डायमेंशन तक सबको क्लियर हो गया? हाँ. Yes, Yes, ma'am. ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशनल फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे। प्लीज यू आर नॉट बीइंग एब्सेंट इन द लेक्चर। एब्सेंट मत रहना, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं।